کے ہتھ کنڈے اپنا کر کیمپوں کو خالی کرا رہی ہے۔ بے سر و سامانی کی حالت میں پڑے ان متاثرین کے خلاف مقدمے درج کیے جا رہے ہیں اور انہیں زبردستی کھدیڑا جا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ منصورہ کیمپ کے 100 خاندانوں کے خلاف سرکاری زمینوں پر قبضے کا مقدمہ درج کیا گیا۔ دوسری طرف محکمہ جنگلات نے ایک کیمپ کے 270 خاندانوں کو زمین خالی کرنے کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ مظفر نگر فسادات متاثرین فرقہ پرستوں کا نشانہ بننے کے بعد اب سرکاری حکام کا شکار بنے ہوئے ہیں۔ یو پی حکومت نے فساد متاثرہ 100 خاندانوں پر سرکاری زمین پر قبضہ کرنے کا معاملہ درج کیا ہے۔ فساد متاثرہ 100 خاندان ضلع شاملی کے مضافات میں واقع ایک دیہات منصورہ میں ایک ریلیف کیمپ میں مقیم ہیں۔ سب ڈویژنل مجسٹریٹ ایس کے سنگھ نے بتایا کہ تحصیلدار ٹھاکر پرساد نے 100 متاثرہ خاندانوں کے خلاف سرکاری زمین پر قبضہ کرنے کی شکایت درج کرائی ہے۔ تحصیلدار ٹھاکر پرساد نے شکایت درج کرائی ہے کہ فساد متاثرین افراد نے سرکاری زمینوں پر اینٹوں کی دیواریں کھڑی کر لی ہیں۔ دوسری جانب ایک اور ریلیف کیمپ میں مقیم 270 خاندانوں کے لیے بھی بری خبر ہے۔ محکمہ جنگلات نے 270 خاندانوں کو نوٹس جاری کیا ہے اور دیہات کی جگہ کو خالی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ اب متاثرین کے لیے امداد لیے جانے والوں کو بھی روک دیا جا رہا ہے۔ یو پی حکام ایک طرف یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ حکومت متاثرین کی ہر ممکن مدد کر رہی ہے اور دوسری طرف مظفر نگر کے لوئی کیمپ کے قریب انسپیکٹر کے پی شرما ریلیف امداد لے کر پہنچنے والوں کو واپس بھیج رہے ہیں۔ سماجی کارکن شہزاد پوناوالا کا کہنا ہے کہ لوئی کیمپ کے علاوہ دیگر کیمپوں میں ابھی بھی 100 خاندان موجود ہیں۔ شہزاد پوناوالا کے مطابق وہ منصورہ کیمپ متاثرین کے لیے امداد لے کر جا رہے تھے تو انسپیکٹر کے پی شرما نے انہیں راستے میں روک دیا اور شناخت معلوم کرنے کے بعد کیمپ کی طرف جانے سے روک دیا۔ جب انسپیکٹر سے روکے جانے کے بارے میں تحریری جواز طلب کیا گیا تو پولیس نے کچھ کہنے سے انکار کر دیا۔ شہزاد پوناوالا کے مطابق مقامی لوگوں نے بھی انسپیکٹر پر جانبداری کا الزام لگایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسپیکٹر کا رویہ ایک مخصوص طبقے کے ساتھ انتہائی جارحانہ رہا ہے۔ اس رویے کی اعلی حکام سے شکایت بھی کی جا چکی ہے۔ بیورو رپورٹ ای ٹی وی نیوز۔ خبرنامہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد۔ آج کل کے انہیلدی لائف سٹائل، کھان پان وغیرہ کی وجہ سے لیور کی کمزوری ایک عام بات ہو گئی ہے۔ نتیجہ گیس، کھانا ہضم نہ ہونا اور بھوک نہ لگنا۔ پیش ہے ہمدرد جگرین، مفید جڑی بوٹیوں سے بھرپور۔ جگرین ایک قدرتی لیور ٹانک ہے۔ جگرین کا روزانہ استعمال آپ کو دیتا ہے کیمیاوی اور زہریلے عناصر سے حفاظت، بہتر قوت ہاضمہ، پیلیا جیسی جگر کی بیماریوں کے علاج میں مدد۔ اپنائیے ہمدرد جگرین اور اپنے لیور کو بنائیے اسٹرانگ۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بچے پڑھ لکھ کر کے جو ہے وہ آگے تو بڑھ رہے ہیں لیکن اخلاقی تعلیم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس میں گراوٹ درج کی جا رہی ہے۔ ٹیچرز کو بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے ٹیچنگ کے تدریس کے مقدس پیشے کو کاروبار بنا لیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ گراوٹ جو ہے وہ دونوں ہی جگہ دیکھی جا رہی ہے؟ جسٹس سچر نے کہا کہ مسلمانوں کی تعلیمی حالت دلتوں سے بھی بدتر ہے۔ اس وقت کا ایک سیاسی منظرنامہ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نظریاتی سطح پر NCERT کی نصاب کی کتابیں تیار ہونے لگی ہیں۔ دور حاضر میں تعلیم و اخلاق کا گرتا معیار۔ دیکھیے پروگرام ہمارے مسائل، جمعے کی رات 8 بجے اور اتوار دوپہر 2:30 بجے، صرف ای ٹی وی اردو پر۔ خبرنامے میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ صومالیہ کے دارالحکومت مغدیشو میں کیے گئے 2 خودکش حملوں میں کم سے کم 6 سیکیورٹی اہلکار ہلاک جبکہ 8 زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو نزدیکی اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ یہ حملہ دارالحکومت کے مشہور ہوٹل جزیرہ کو نشانہ بنا کر کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ کار پر سوار 2 افراد نے ہوٹل میں زبردستی گھسنے کی کوشش کی تو تعینات سیکیورٹی اہلکاروں نے انہیں روکا۔ اسی اثنا کار دھماکے سے اڑ گئی۔ دھماکے کے بعد سیکیورٹی اہلکار اور راہگیر دھماکے کے مقام پر جمع ہو ہی رہے تھے کہ وہاں ایک اور دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ چیک ریپبلک کی راجدھانی پراگ میں فلسطینی سفیر کی رہائش گاہ میں ہوئے دھماکے میں سفیر جمال الجمال ہلاک ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق جمال حال ہی میں نئی رہائش گاہ میں منتقل ہوئے تھے۔ وہ پرانی الماری کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، اسی دوران یہ دھماکہ ہوا جس سے وہ بری طرح زخمی ہو گئے۔
انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ اس دھماکے میں جمال الجمال کی اہلیہ بھی زخمی ہوئی ہے، ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔ الماری فلسطینی سفارت خانے سے لائی گئی تھی اور گزشتہ 20 برسوں سے بند پڑی تھی۔ غداری کیس میں پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف کو ہر حال میں آج عدالت میں پیش ہونا ہے۔ اگر مشرف آج بھی پیش نہیں ہوئے تو ان کی گرفتاری کا حکم عدالت دے سکتی ہے۔ 6 رکنی بینچ نے غداری کیس کی سماعت بدھ کے روز پرویز مشرف کی غیر موجودگی میں شروع کی۔ مشرف کے وکلاء نے عدالت میں سیکیورٹی کا عذر پیش کرتے ہوئے سماعت ملتوی کرنے کی درخواست کی، جسے عدالت نے مسترد کرتے ہوئے حکام سے پرویز مشرف کو جمعرات کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ امریکہ کے مینیپولس میں 3 منزلہ عمارت میں آگ لگ گئی۔ فائر بریگیڈ کی کئی گاڑیاں موقع پر پہنچ گئی۔ فائر بریگیڈ عملے نے 13 افراد کو مقامی اسپتال منتقل کرا دیا ہے، ان میں 6 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ آگ کیسے لگی اس کا پتہ فی الحال نہیں لگ سکا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے 2 بھیانک دھماکوں سے دہل جانے والے وولگوگراد شہر کا دورہ کیا۔ پوتن نے کہا کہ دھماکوں کے پیچھے محرکات کچھ بھی رہے ہوں لیکن شہریوں کو نشانہ بنانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے 2 دھماکوں سے دہل کر رہ جانے والے شہر وولگوگراد کا بدھ کی صبح دورہ کیا۔ یاد رہے کہ اتوار کے روز شہر کے ریلوے اسٹیشن پر اور پیر کے روز شہر کی ایک ٹرام میں ہوئے دھماکے میں متعدد افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ مہلوکین کی یاد میں بنائی گئی یادگار پر پوتن نے حاضری دی اور حملوں میں مارے گئے افراد کو گلہائے عقیدت پیش کیا۔ بعد میں انہوں نے ایک اسپتال کا دورہ کرتے ہوئے زخمیوں کی عیادت کی۔ خیال رہے کہ وولگوگراد میں ہونے والے دھماکوں کی ذمہ داری کسی نے بھی قبول نہیں کی ہے، لیکن یہ دھماکے ایک عسکریت پسند کے اس بیان کے چند مہینے بعد ہوئے ہیں جس میں اس نے فروری میں منعقد ہونے والے سوچی اولمپکس کو نشانہ بنانے کی بات کہی تھی۔ وولگوگراد میں وفاقی سیکیورٹی ایجنسی کے حکام کے ساتھ پوتن نے ایک میٹنگ کی۔ میٹنگ سے قبل پوتن نے کہا تھا کہ وہ بند کمرے میں منعقد ہونے والی میٹنگ میں دھماکوں اور دہشت گردانہ کارروائیوں کی روک تھام کے لیے اٹھائے جا رہے اقدامات کے بارے میں حکام سے سوالات کریں گے۔ Преступлений, которые совершены здесь, в Волгограде, не нуждаются в дополнительных комментариях. А чем бы ни мотивировали свои действия преступники, нет никакого оправдания совершению преступлений против гражданских лиц, особенно против женщин и детей. 10 لاکھ کی آبادی والے شہر وولگوگراد میں دھماکوں کے بعد سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ شہری انتظامیہ نے نئے سال کی تقاریب کو منسوخ کر دیا جبکہ شہر کے سنیما ہال بھی جمعرات تک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ شام کے کیمیائی ہتھیاروں کی ملک سے باہر منتقلی کے لیے تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہتھیاروں کی منتقلی کے لیے شام کی بندرگاہ لتاکیہ میں حفاظتی اور دوسرے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ لتاکیہ شام کا وہ بندرگاہ ہے جہاں ملک سے باہر منتقلی سے پہلے شام کے تمام کیمیائی ہتھیار جمع کیے جائیں گے۔ لتاکیہ کے میئر کا کہنا ہے کہ UNOPCW کے خصوصی کوآرڈینیٹر نے شہر کے معائنے کا کام مکمل کر لیا ہے اور مشن کے لیے تمام تیاریاں پوری ہو گئی ہیں۔ اتخذت كامل الاحتياطات لتدارك أي مشكلة ممكن أن تحدث لنقل الأسلحة، وكل الأمور بجاهزية ونحن جاهزين لتقديم كل الخدمات والمساعدات۔ میئر کے مطابق کیمیائی ہتھیاروں کی منتقلی کے لیے گاڑیاں بھی تیار ہیں اور ان کے خیال میں منتقلی کا عمل چند دنوں میں شروع ہو جائے گا۔ نتوقع خلال أيام ستبدأ عملية الترحيل وكل التجهيزات اتخذت والسيارات اللازمة لتأمين نقل الأسلحة بشكل آمن موجودة وجاهزة۔ شام کے تقریباً 1000 ٹن کیمیائی ہتھیار اور مواد ملک سے باہر منتقل کیے جائیں گے اور ایک بحری جہاز پر انہیں تلف کیا جائے گا۔ اس دوران میڈیا پر لتاکیہ کے بندرگاہ کے قریب آنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے جبکہ شہریوں پر علاقے کی تصویریں لینے سے بھی روک لگا دی گئی ہے۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ وزارت سیاحت نے نئے سال کے موقع پر کیلنڈر جاری کیا ہے۔ کیلنڈر میں ملک بھر کے اہم سیاحتی مقام کی تصویریں ہیں۔ نئی دہلی میں کیلنڈر جاری کرتے ہوئے سیکرٹری
پرویز دیوان نے بتایا کہ وزارت انکریڈیبل انڈیا مہم کے تحت سیاحتی مقامات اور سیاحت سے جڑی معلومات 11 غیر ملکی زبانوں میں مہیا کرائے گی. خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی. آداب. अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया. जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर. दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान. तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर. ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम. नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास. सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है. आज नए वर्ष का पहला दिन है. इस नए वर्ष की मेरी तरफ से आप सभी दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं. अपना मानना है कि वर्ष 2014 में हम बदलेंगे. हम हिंदुस्तानियों के लिए यह साल ऐतिहासिक साबित होगा. हम और हमारी दशा दिशा के बदलने की ढेरों वजह इस नए साल में है. वर्ष 2014 में भारत को नया प्रधानमंत्री मिलेगा. केंद्र में नई सरकार होगी. राजनीतिक अनिश्चितताएं खत्म होगी. उसके साथ आर्थिक कारोबारी माहौल बदलेगा. हालात बदलेंगे. जाहिर है गुजरे साल जो एजेंडा बना, जो मुद्दे पैदा हुए और जनता जिस सोच विचार में है उसी अनुसार सन 2014 में फैसला आना है. देश के सुधी जन से लेकर आम जन सभी के दिलो दिमाग में ढेरों सवाल उमड़ गुमड़ रहे हैं. इन सवालों पर ही अगले 4-5 महीने धुआंधार भाषण होंगे और वायदे मिलेंगे. सवाल है, क्या नेता जनता की चिंताओं को समझे हुए हैं? वर्ष 2014 के लिए कितनी तरह की कैसी चिंताएं हैं? वर्ष 2014 का क्या एजेंडा बनता है? सन 2014 के लिए बतौर राष्ट्र राज्य हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज. शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं. कांग्रेस में इन दिनों जुनूबी हिंदुस्तान की 4 रियासतों को लेकर ज्यादा फिक्रमंदी का माहौल है. कांग्रेस जब जब बहरान में मुब्तला रही है तब इन रियासतों से उसे सहारा मिला है, लेकिन इस बार इन्हीं रियासतों में ज्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं. इसलिए पार्टी के आला रहनुमा अंदर का झगड़ा सुलझाने और इत्तेहाद कायम किए जाने की कोशिश में मसरूफ हैं. इस कोशिश के तहत ही कर्नाटक और केरल में हुकूमत में रद्दबदल किया गया. आज एक साथ दोनों रियासतों में वज़राए आला ने बदलाव किया है. केरल कांग्रेस की रियासती सदर रमेश चेन्निथल्ला की मुसलसल मुखालफत कर रहे वजीर आला ओमन चांडी ने उनको हुकूमत में शामिल किया है और उन्हें वजारत दाखिला सौंप दिया है. बताया जा रहा है कि अक्सरियती तबके हिंदू वोटों की नाराजगी को देखते हुए कांग्रेस के सीनियर रहनुमा AK एंटनी ने यह फैसला करवाया. इसी तरह कर्नाटक में भी काबीना में तौसी की गई है और हुकूमत से बाहर छूट गए 2 कद्दावली चान DK शिव कुमार और रोशन बेग को वजीर बनाया गया है. कर्नाटक में कांग्रेस मजबूत पोजीशन में है, लेकिन दाखिली खींचतान के सबब इंतखाबी इम्कानात कमजोर हो रहे थे. ऊपर से BS येदियुरप्पा की बीजेपी में वापसी तय हो गई है. इससे भी कांग्रेस को अपनी हिकमत अमली पर असर नौ गौर करना पड़ा. अब कांग्रेसी लीजान को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की फिक्र करनी है, जहां उसका अभी तक कोई इत्तेहाद नहीं हो सका है.
भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सोच समझकर दिल्ली में प्रोटेम स्पीकर का ओहदा ठुकराया। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने दिल्ली के सबसे सीनियर रुकन असेंबली जगदीश मुखी का नाम तजवीज किया था, लेकिन बीजेपी ने बहुत ही सब्र तहम्मुल के साथ इस तजवीज को मुस्तरद कर दिया। बीजेपी के इनकार के बाद कांग्रेस के चौधरी मतीन अहमद को प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नए मुंतखब हुए असेंबली अरकान को हलफ दिलाने की जिम्मेदारी उनको दी गई। दरअसल बीजेपी की हिकमत अमली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक जाहिर करने की है। बीजेपी लीडरान को अंदाजा था कि अगर वो प्रोटेम स्पीकर का ओहदा ठुकराएंगे तो कांग्रेस का कोई रुकन असेंबली ये जिम्मेदारी अदा करेगा। अगर बीजेपी के जगदीश मुखी हलफ दिलाते तो ये पैगाम जाता कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के साथ ताउन कर रही है। उसके अपने वोटरों में इसे लेकर कंफ्यूजन का माहौल पैदा होता। अब ये पैगाम जाएगा कि बीजेपी अलग है और कांग्रेस व आप एक हैं। बीजेपी को इससे अगले इलेक्शन में फायदा मिलने का इम्कान है। आगे भी बीजेपी की जानिब से इसी बात को तशहीर किया जाएगा। बीजेपी रहनुमा मान रहे हैं कि दिल्ली और दूसरी रियासतों में भी आपका असर इसी बात से कम होगा कि वो कांग्रेस के साथ हैं। उनको वोट देने का मतलब है कि कांग्रेस को वोट देना। मरकजी हुकूमत ने गुजरात में खातून की जासूसी के मामले की जांच के लिए कमीशन बना दिया है। यह कमीशन 3 महीने में अपनी जांच की रिपोर्ट देगा। मरकजी हुकूमत ने कमीशन के कामकाज का दायरा बहुत वसी रखा है। उसमें अरुण जेटली के कॉल डिटेल निकालने का इशू भी शामिल कर दिया गया है और साथ ही हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत के दौरान कांग्रेसी रहनुमा वीरभद्र सिंह के टेलीफोन टेप किए जाने का इशू भी उसकी जाँच के दायरे में ला दिया गया है। लेकिन खास तौर से कमीशन को गुजरात के खातून आर्किटेक्ट की मुबैना इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल निगरानी की जांच का है। कांग्रेसी लीडरान को इस जांच से बहुत उम्मीद है। जराये का कहना है कि मरकजी हुकूमत ने अपनी एजेंसियों से पहले ही इसकी जांच करवा ली है और मरकज को जो फीडबैक मिली है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि खातून आर्किटेक्ट की निगरानी हुई थी। गुजरात से बाहर भी खातून के फोन टेप किए गए हैं और उसकी फिजिकल निगरानी हुई। इसके सबूत भी कहा जा रहा है कि मरकजी एजेंसियों के पास मौजूद हैं, जो वो मांगे जाने पर जांच कमीशन को मुहैया करवाएंगे। बातचीत के कुछ और टेप भी एजेंसियों के पास हैं, जो जांच कमीशन को दिए जाएंगे और उसके बाद एन इलेक्शन से पहले उसे मंजर आम पर रखा जाएगा। लेकिन बीजेपी रहनुमा भरोसे में है कि मरकज व कांग्रेस हुकूमत जितना कीचड़ उछालेगी, कमल उतना ही खिलेगा। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। मरकजी हुकूमत ने राष्ट्र गैर मुल्की सरमायाकारी के ज़ाब्ते में मजीद नरमी बरतने की तैयारी कर रही है। मरकजी वजीर सनत और तिजारत आनंद शर्मा ने कहा है कि आने वाले हफ्ते में हुकूमत FDI के ज़ाब्ते में ढील देगी ताकि हिंदुस्तान ज्यादा से ज्यादा गैर मुल्की सरमायाकारों को अपनी जानिब खींच सके। गुज़िश्ता साल मरकजी हुकूमत ने खुर्दा कारोबार में राष्ट्र गैर मुल्की सरमायाकारी की मंजूरी दी थी और साथ ही टेलीकॉम, दिफाई, पेट्रोलियम, रिफाइनरी वगैरह के सेक्टर में FDI के ज़ाब्ते में ढील दी थी। माना जा रहा है कि अब हुकूमत रेलवे में और तामीराती सेक्टर में राष्ट्र गैर मुल्की सरमायाकारों को लुभाने के लिए ज़ाब्ते में कुछ ढील देने वाली है। अपने इश्तियाल अंगेज तमिल सियासत के लिए मशहूर रहे MDM के सरबराह वाई को एक बार फिर NDA में शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि मरकज की UPA हुकूमत को हटाने और अगले इलेक्शन के बाद कांग्रेस की मदद से कोई हुकूमत बनने के इम्कानात को खत्म करने के लिए उनकी पार्टी NDA में शामिल होगी। अटल बिहारी वाजपेयी की क़यादत में जब मरकज में NDA की हुकूमत थी, उस वक्त वाई को उससे जुड़े थे। उन्होंने कहा कि NDA में शामिल होने के बारे में उनकी बात BJP सदर राजनाथ सिंह से हुई है। वाई को ने कहा है कि कांग्रेस का पूरे मुल्क से सफाया हो जाएगा। BJP वजारत उस्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी मुल्क के अगले वजीर आजम बन सकते हैं। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के हामी रहे वाइको ने यह भी कहा है कि इस मसले पर उनकी पार्टी अपनी राय पर दोबारा गौर कर सकती है। गौरतलब है कि BJP इस प्रोजेक्ट की मुखालफत करती है। यूथ कांग्रेस के लीडरान ने BJP सदर राजनाथ सिंह की रिहाइशगाह पर एहतजाज किया। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि गुजरात की नरेंद्र मोदी हुकूमत में एक सजायाफ्ता बाबू बुखारिया को वजीर बनाया गया है। वो जमानत पर छूटे हैं। इससे पहले BJP यूथ मोर्चे के लीडरान ने मंगल को कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी की रिहाइशगाह के सामने एहतजाज किया था। BJP रहनुमा हिमाचल प्रदेश के वजीर आला वीरभद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का मुतालबा कर रहे थे। वीरभद्र सिंह पर BJP के सीनियर रहनुमा अरुण जेटली ने कई तरह के बदउनवानी में शामिल होने के इल्जाम आयद किए हैं।
कांग्रेस ने उनके ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अगर बीजेपी के पास सबूत हैं तो वो मुताल्लिका जांच एजेंसी से बराह रास्त राब्ता कायम करे। हिमाचल प्रदेश के वजीर आला वीरभद्र सिंह पर लगाए गए इल्जामात को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच गई। बीजेपी लीडर ने इलेक्शन कमीशन को बताया है कि वीरभद्र सिंह और उनकी अहलिया ने जानबूझकर कई इत्तलात अपने हलफनामे में नहीं दी हैं। बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि वजीर आला और उनकी अहलिया ने करोड़ों रुपए की जायदाद के बारे में इत्तला नहीं दी है। बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने कहा कि वीरभद्र सिंह ने एक बिजली कंपनी को जबरदस्त फायदा पहुंचाया है और बदले में उससे पैसे लिए हैं। इससे पहले राज्यसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा अरुण जेटली ने वीरभद्र सिंह पर इल्जाम लगाया था और उसकी जांच के लिए वजीर आज़म को खत भी लिखा था। दिल्ली असेंबली का नया इजलास आज से शुरू हो गया है। 7 दिन के इस पहले इजलास में वजीर आला अरविंद केजरीवाल अपनी हुकूमत की अक्सरियत को साबित करेंगे। आम आदमी पार्टी की हुकूमत 20,000 लीटर हर खानदान को हर महीने मुफ्त में पानी और बिजली की कीमतों में 50% तक के रियायत देने के ऐलान के बाद अब बिजली कंपनियों का ऑडिट कराने का फैसला लिया है। असेंबली का इजलास शुरू होने से पहले ही उबूरी स्पीकर को लेकर तनाजा खड़ा हो गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने बीजेपी के जगदीश मुखी के नाम की तजवीज रखी थी, लेकिन बीजेपी ने इसे तस्लीम करने से मना कर दिया। उसके बाद कांग्रेस के चौधरी मतीन अहमद ने उबूरी स्पीकर का किरदार अदा किया और पहले दिन अरविंद केजरीवाल समेत दूसरे असेंबली अरकान को हलफ दिलाया गया। माना जा रहा है कि उनकी देखरेख में ही हुकूमत जुमेरात को अक्सरियत साबित करेगी और जुमा को स्पीकर का इंतखाब अमल में आएगा। आम आदमी पार्टी ने MS धीर को स्पीकर बनाने का ऐलान किया है। हिंदुस्तानी फिजाइया के लिए VVIP हेलीकॉप्टरों की खरीद के सौदे को हुकूमत ने मंसूख कर दिया है। ये सौदा इंग्लो इतालवी कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ 3600 करोड़ रुपए की डील में था। 3600 करोड़ रुपए के इस सौदे के समझौते में कमीशन की अदायगी के इल्जामात लगे थे, जिसके बाद हुकूमत हिंद ने इसे मंसूख करने का फैसला किया। गौरतलब है कि हिंदुस्तानी फिजाइया की साबिक सरबराह SP त्यागी इस मामले में एक मुलजिम है। इस मामले की जांच CBI कर रही है। बताया जा रहा है कि वजीर दिफा AK एंटनी की आज वजीर आजम मनमोहन सिंह से मुलाकात के बाद इस सौदे को मंसूख करने का फैसला किया गया। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होगी। लोगों का ये कहना है कि बच्चे पढ़ लिख करके जो है वो आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अखलाकी तालीम जो है वो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। टीचर्स को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने टीचिंग के तदरीस के मुकद्दस पेशे को कारोबार बना लिया है। अब तो लगता है कि गिरावट जो है वो दोनों ही जगह देखी जा रही है। जस्टिस सच्चर ने कहा कि मुसलमानों की तालीमी हालत दलितों से भी बदतर है। इस वक्त का एक सियासी मंजरनामा है, उसमें हम देखते हैं कि नजरियाती सतह पर NCERT की निसाब की किताबें तैयार होने लगी हैं। दौर हाजिर में तालीम और अखलाक का गिरता मियार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर, दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान।
तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें व घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। सुषमा स्वराज और अरविंद केजरीवाल में कौन कौन सी चीजें एक जैसी हैं? सुषमा 3 महीने के लिए दिल्ली की वजीर आला रही हैं और केजरीवाल अभी वजीर आला बने हैं, जिनके बारे में उनके करीबियों का कहना है कि 3 महीने तक वजीर आला रहेंगे। लेकिन इसके अलावा दोनों में एक और मुमासलत पाई जाती है। सुषमा स्वराज वजीर आला बनी तो उन्होंने कहा कि वो रातों को जागेंगी ताकि दिल्ली के लोग चैन से सो सकें, और वो थानों का जायजा लेने चली गयी। उनको इसका ध्यान ही नहीं रहा कि ये जानकारी ही नहीं थी, दिल्ली हुकूमत के तहत आती ही नहीं है। इसी तरह केजरीवाल ने कह दिया कि वो CNG की कीमतें घटाने पर गौर करेंगे। बाद में उनको बताया गया कि कीमतें घटाने का अख्तियार उनको नहीं है, क्योंकि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में दिल्ली हुकूमत की हिस्सेदारी सिर्फ 5% है। उन्होंने बिजली की कीमतें घटाने का भी वादा किया था, लेकिन जब पता चला कि वो कीमतें नहीं घटा सकते तो सब्सिडी देकर काम चलाया जा रहा है। बिहार की इंतखाबी तस्वीर वाज़ेह होती हुई दिख रही है। RJD सरबराह लालू प्रसाद यादव की कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वो इत्तेहाद के लिए कोई भी कुर्बानी पेश करने को तैयार हैं। इसका मतलब है कि वो कांग्रेस के लिए कुछ ज्यादा सीटें छोड़ने के लिए राजी हो सकते हैं। उन्होंने लोजपा के साथ भी इत्तेहाद का भरोसा जाहिर किया है। वैसे भी माना जा रहा है कि अगर RJD कांग्रेस साथ आए तो लोजपा उसी अलायंस में रहेगा। इस इत्तेहाद में CPI-ML और NCP को भी एक सीटें मिलेंगी। दूसरा इत्तेहाद बीजेपी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का है। उपेंद्र कुशवाहा और अरुण कुमार से बीजेपी लीडरान की बातचीत सीटों को लेकर चल रही है। तीसरा इत्तेहाद बरसर इख्तियार जनता दल यू का होगा, जिसमें CPI और CPM शामिल होंगे। ऐन मौके पर कुछ लीडरान और सीटों की अदला बदली हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर इन 3 पार्टियों का यही सहरुखी मुकाबला होगा। आम आदमी हो या बड़ा आदमी, सभी 2014 से बहुत उम्मीदें बांधे हुए हैं। भारत के लिए नया वर्ष शुभ हो और लोग मुश्किलों से राहत पाए, यह उम्मीद अगले जनादेश पर टिकी है। लोकसभा चुनाव इस वर्ष की निर्णायक घटना होगी। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। इस साल का कई सालों से इंतजार था। हिंदुस्तान की सियासत, इक्तसादियात और समाजी सिस्टम में 2014 का जैसा इंतजार हुआ है, वैसा इंतजार हाल की दहाइयों में शायद किसी और साल का नहीं हुआ होगा। 2-2.5 साल पहले हुकूमत हिंद के उस वक्त के इक्तसादी मुशीर कौशिक बसु ने कहा था कि मुल्क की इक्तसादियात में इस्लाह 2014 से पहले मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा था कि 2014 के इलेक्शन के बाद मुस्तकिल तौर पर हुकूमत बनेगी तो वही हुकूमत मईशत में बेहतरी के बारे में ठोस फैसले कर सकेगी। इसी तरह गुजरात में नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरी बार वापसी और आम आदमी पार्टी की दिल्ली में जीत के बाद से सियासी हलकों में नए साल के इलेक्शन का इंतजार हो रहा है। माना जा रहा है कि अप्रैल मई के इलेक्शन के बाद मुल्क में नया सियासी सिस्टम बनेगा। बुनियादी तौर से नए साल में होने वाले इलेक्शन से ही तमाम बदलाव जुड़े हुए हैं। नई और मुस्तकिल हुकूमत बनेगी जो ठोस और फैसला कुन और हतमी फैसले करेगी, मुल्क की मईशत को बेहतरी के रास्ते पर ले जाएगी, समाज में खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी, सरहद पर मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के बंदोबस्त को मजबूत करेगी और दुनिया भर के ममालिक के सामने भारत मजबूती के साथ खड़ा होगा और बराबरी से बातचीत करेगा। हालांकि इन तमाम उम्मीदों से कुछ चेहरे जुड़े हुए हैं, लेकिन बिना किसी सियासी कब्ल अज़ वक्त के कयास के भी कहा जा सकता है कि मुल्क के लोगों ने बदलाव की उम्मीद पाली हुई है, जिसकी झलक दिल्ली में देखने को मिली है। गुज़िश्ता साल दिल्ली में एक बड़ी सियासी तहरीक हुई थी, जिसके नतीजे में आम आदमी पार्टी की हुकूमत कायम हुई है। आम आदमी पार्टी ने लोक लुभावन वादों की सियासत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। दूसरी तमाम सियासी जमातों को अब उनकी शराइत पर सियासत करने की मजबूरी बनती हुई दिख रही है। इससे ये भी लग रहा है कि हिंदुस्तान में सियासी बहस का बुनियादी इशू बदल रहा है। अगले 4-5 महीने इस सियासी बदलाव की सिमत को लेकर धुआंधार बहस छिड़ेगी। मार्च से लोकसभा इलेक्शन के लिए तशहीर शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही 2 रियासतों के असेंबली इलेक्शन की तशहीर भी चलेगी। आम इंतखाबात के साथ ही आंध्र प्रदेश और ओडिशा के इलेक्शन
होंगे। उसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड में असेंबली इलेक्शन होंगे। यानी सियासी लिहाज से देखें तो अगला साल सियासी तौर से जबरदस्त बदलाव का साल हो सकता है। इसकी वजह यह है कि मरकज में कांग्रेस क़यादत वाली हुकूमत है और जिन 6 रियासतों में असेंबली का इलेक्शन होना है उनमें से 5 रियासतों में कांग्रेस और उसकी हलीफ पार्टियों की हुकूमतें हैं। सिर्फ ओडिशा गैर कांग्रेसी दौर इख्तदार वाली रियासत है। चुनांचे अगर गुज़िश्ता साल 4 रियासतों में हुए इलेक्शन के नतीजों को कोई इशारा माना जाए तो नया साल कांग्रेस के लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। बहरहाल नए साल से बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हैं। खुद वजीर आजम मनमोहन सिंह ने भी नए साल के अपने पैगाम में कहा है कि लोग उम्मीदों का दामन न